السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ القاریہ کی تفسیر لینے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ قاریہ کا معنی کیا ہے؟ قرأ یقرأ کے معنی کسی چیز کو زور سے بجانا، کھٹکھٹانا، اور اسی طرح کسی بڑی آفت اور مصیبت کو بھی قاریہ کا نام دیا جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ الرعد میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کسی قوم کے بارے میں کہ ان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت کا آنا۔ تو قیامت کے نام جو ہیں، قیامت قرآن کریم میں جو ذکر ہوئے ہیں، وہ سبھی ایسے نام ہیں کہ جس نام کے اندر ہی قیامت کی ہیبت کا، اس کے خوفناک ہولناک مناظر کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں پر قاریہ کے نام سے پڑھ رہی ہیں، کہیں پر الحاقہ ہے، کہیں پر الغاشیہ ہے، کہیں پر الصاخہ ہے، ایسی تیز آواز جو کانوں کو بہر کر دینے والی، اور کہیں پر طامۃ الکبریٰ کہ بہت بڑی آفت و مصیبت۔ تو ان ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کس قدر ہولناک ہے۔ اور مزید یہاں پر اس قیامت کا نام لے کر کے قاریہ جو بڑی کھٹکھٹانے والی، بجنے والی، بڑی اس کی زوردار آواز ہے، اور اس کی ہیبت ناکی کو مزید واضح کرنے کے لیے ماں کہ مل قاریہ کیا ہے وہ قاریہ، وما ادراک مل قاریہ، تمہیں ماں کیا معلوم کہ وہ قاریہ کیا ہے۔ عربی کا انداز ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنا ہو، چاہے وہ اہمیت اس کے خوفناک ہونے کے حوالے سے ہو یا اور کسی لحاظ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو سوال کے انداز سے، سوالیہ انداز سے بار بار اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہے، تاکہ سننے والا پہلے سے الرٹ ہو جائے کہ جس چیز کے میرے بارے میں بیان ہونے جا رہا ہے کہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو میں وما ادراک ما القاریہ، اچھا قیامت کی ہولناکی ناموں کے اندر بیان کر کے بتایا کہ قاریہ کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن ہوں گے لوگ کالفراش، فراش کہتے ہیں پتنگے کو، آگ کے اوپر، آگ کے آس پاس، لائٹوں کے آس پاس جو پتنگے گھومتے ہیں، اڑتے ہیں، ان کو فراشہ کا نام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو منظر بیان کیے، ایک لوگوں کا منظر بیان کیا اور ایک جو ہے پوری مخلوقات کا منظر بیان کیا کہ لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ یوم جس دن یکون ہوں گے الناس لوگ کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند، جس طرح پتنگے آتے ہیں روشنی کے آس پاس، آگ کے آس پاس، اور گر پڑ رہے ہوتے ہیں، ٹکرا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بے ترتیبی کے ساتھ، ایسے ہی لوگوں کا قیامت کے دن حال ہوگا کہ قیامت کی ہولناکی، اس کی دہشتناکی سے اس قدر لوگ خوفزدہ ہوں گے کہ کسی کو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہوگی کہ کیا کرے، کدھر جائے۔ تو افراتفری کا جس کو کہتے منظر، تو لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جیسے بکھرے پتنگے ہوتے ہیں، اس انداز سے مدہوشی کی حالت اور بڑے خوفناک کیفیت میں۔ سورۃ الحج کے شروع میں اللہ نے کچھ لوگوں کا منظر کھینچا ہے، قیامت کے دن کیسا ہوگا، کیسا منظر ہوگا۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ ماتا ہے کہ جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ چیز اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وتری الناس سکارا، اور تم کو لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے کہ ان کو کوئی نشہ ہو، کوئی مدہوش ہو،
उनके होशो हवास उड़े हो। तो ये क़यामत का मंजर अल्लाह ने बयान किया है कि क्या हाल होगा। तो यहाँ पर भी लोगों का हाल बयान किया कि जैसे लोग बिखरे हुए पतंगों की मानत, हर एक को अपनी अपनी फिक्र, हर एक को अपने अपने आप में मगन और इधर उधर दौड़ रहे होंगे। कुछ समझ नहीं आती होगी कि क्या हमारे साथ होने वाला है और क्या हम करें। हम दुनिया में देखते हैं कि जब कोई बड़ी आफत मुसीबत आती है तो लोगों के अंदर क्या अफरा तफरी का मंजर होता है। ये तो दुनिया की हल्की फुल्की कोई आफतें मुसीबतें हैं, तो क़यामत के दिन जिसको अल्लाह ने खुद जो है तामतुल कुबरा का नाम दिया है कि जो बहुत बड़ी आफत मुसीबत है, उस दिन लोगों का क्या हाल होगा। एक मंजर लोगों का पेश किया, उसके बाद दूसरा मंजर पेश किया बाकी मखलूक़ात का। और मखलूक़ात में एक बहुत बड़ी मखलूक जो हमारे सामने बड़ी मजबूत हमको नजर आती है, वो क्या है? पत्थर और पहाड़, गड़े हुए ऊंचे पहाड़ के जिनको बाज़ औक़ात तोड़ने के लिए भी मशीनें टूट जाती। अल्लाह ने उन पहाड़ों का मंजर बयान किया कि क़यामत की हौलनाकी के अंदर हत्ता कि इन ऐसी मखलूक़ात का भी हाल क्या होगा। वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मनफूश, कि जिस दिन पहाड़ जो बड़े संगलाख पत्थर हैं, ये क्या होंगे? ऐसे होंगे जिसका ऊन हो, और ऊन भी कोई आम ऊन नहीं बल्कि जो ऊन धुनी जाती है जिसको मशीन में डालकर उसका एक एक रेशा अलग हो जाता है, ऐसी ऊन की तरह पहाड़ हो जाएंगे। ऊन अगर इकट्ठी हो ना, जमी हो, तो फिर भी उसके अंदर कोई सख्ती का पहलू होता है, लेकिन ऊन को जब मशीन से निकाला जाता है एक एक रेशा उसका अलग होता है। इतनी सी ऊन जो है फैल कर इतनी होती है। तो ये संगराख पत्थर पहाड़ जो है इस धुनी हुई रंगीन ऊन की मानना हो गए। मनफूश के मानी, अहन के मानी रंगीन ऊन, मनफूश जो धुनी गई हो। तो ऐसी ऊन की मानत जो है वो पहाड़ होंगे, यानी पहाड़ों की सख्तियां खत्म हो गई। सबसे पहले तो उनका जमीन के ऊपर वजन ही खत्म हो जाएगा, मुर्गी मिट्टी की तरह बना देगा अल्लाह ताला। उसके बाद इसको इस धुकी ऊन की मानत और फिर धुएं की मानत, बादल की मानत, और आखिर में बिल्कुल शराब बनकर खत्म हो जाएंगे। तो ये है क़यामत का मंजर कि पहाड़ों का ये हाल होगा। लोगों का हाल क्या है और बाकी मखलूक़ात, उसमें अल्लाह ने पहाड़ों का सिर्फ एक मिसाल दे दी। बाकी ज़मीन आसमान के साथ किस अंदाज से उस दिन क्या क्या हालात होंगे, जिसका अगली सूरतों में जिक्र आ रहा है। उस दिन फिर क्या होगा? असल वो दिन क़यामत का दिन हिसाब किताब का दिन है। अल्लाह ने पहले उस दिन की हौलनाकी जिक्र कर दी, और फिर उस दिन के अंदर जो कुछ होने वाला है और उस क़यामत के दिन का असल जो मकसद है उसको बयान किया। मकसद क्या है उसका? हिसाब किताब का, जज़ा सज़ा का। उस हिसाब किताब के लिए क्या है? अल्लाह माता फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, कि वहाँ पर तराजू लगेंगे लोगों के अमाल का वजन करने के लिए। तराजू होंगे, एक नेकियों का तराजू, दूसरा बुराइयों का। और वो तराजू ऐसे हैं कि जिनमें जर्रात का वजन भी है। जर्रा क्या होता है? कभी आपके यहाँ दीवार में कोई रोशनदान किसी उस जगह से धूप अंदर आती हो, वो धूप में देखो क्या आपको नजर आता है? जो रोशनदान से अंदर वाली धूप होती है, क्या आपको नजर आता है? बिल्कुल बारीक बारीक किस्म के जर्रात उड़ते हुए। अगर आप उनको पकड़ना भी चाहे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, और शायद इसी धूप में आपको नजर आए, वैसे नजर भी ना आए। इसको कहते हैं जर्रा। तो क़यामत के दिन के जो तराजू है, उस दिन इन जर्रात का वजन भी होगा। ऐसे बारीक तराजू, अगरचे इंसान भी आज अपनी टेक्नोलॉजी से ऐसे ऐसे बारीक किस्म के तराजू निकाल चुका है कि जिसमें बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ों का वजन हो जाता है, लेकिन शायद जर्रे के वजन का अभी तक तराजू ईजाद न हुआ। लेकिन क़यामत के तराजू ये है कि जिस दिन जर्रात का वजन भी होगा, और इन जर्रात के वजन की वजह से ही किसी की मामूली नेकियां ज़्यादा, किसी की मामूली नेकियां कम, किसी का नेकियों का तराजू भारी, किसी का बुराइयों का तराजू भारी। तो तराजू लगेंगे। अच्छा, इन तराजू में क्या क्या तोला जाएगा? इन मवाज़ीन में, तराजू में क्या तोला जाएगा? उसमें तोले जाने वाली तीन चीज़ें हैं।
वो 3 चीज़ें क्या हैं? एक अमल है, इंसान जो अमल कर रहा है, अच्छा हो बुरा हो, वो कोई बातचीत हो, कोई अमल किरदार हो, कुछ भी हो, अल्लाह ताला इन सभी चीज़ों को क़यामत के दिन तराजू में डालेगा और इनका वजन होगा। हम बातें भी कर रहे हैं, अब बात का वजन किया जाता है दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर कोई ऐसा तराजू नहीं जिससे बात का वजन है, आपके कलाम का, आपकी बात का वजन किया जाए। लेकिन क़यामत के तराजू वो है कि जिसमें बातों का वजन भी हो जाएगा। आपने कोई काम किया है, नमाज पढ़ी है, अब वैसे नमाज के हवाले से कोई इसका वजन है, लेकिन क़यामत के दिन इन चीज़ों का वजन भी है। तो अमाल का वजन, इंसान ने जो कुछ किया है उसका वजन। और इसी में वो हदीस आती है कि एक आदमी जिसके पास सिर्फ एक कार्ड होगा नेकियों में से, उसका सिर्फ एक कार्ड होगा जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह वो जो समझ कर मालूम करके पढ़ा गया, उसके ऊपर चला गया, उसके तकादे पूरे किए, तो उसके पास ये सिर्फ कार्ड होगा जिसका वजन होगा, और ये कार्ड ही उसके बुराइयों के सारे रिश्तों से भारी हो जाएगा। तो मालूम हुआ कि इंसान जो करता कहता है, उसके जो अमाल है, अक़वाल है, उसका वजन है। और दूसरी चीज़ जिसकी वजन है वो अमाल नामे हैं, जिनमें आवाज़ दर्ज हो रहे हैं, रजिस्टर हैं, इनका वजन, जिस तरह के हमने जिक्र किया है। और अमाल के वजन, ये अंदर की वजन के अंदर ये भी आता है, आप माते से बुखारी की आखिरी हदीस सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये 2 कलमे ऐसे हैं कि जो अल्लाह के यहाँ बड़े पसंदीदा हैं और तराजू में बड़े भारी हैं। तराजू में ये 2 कलमे बड़े भारी हैं। इसका मतलब कि बातों का, कलिमात का, अमाल का वजन है, अमाल नामों का वजन है। और तीसरा जिस चीज़ का वजन है, बजाते खुद आमिल का, अमल करने वाले का, इंसान का खुद का वजन। लेकिन इंसानों के वजन जो है वो किस म्यार पर होंगे? क्या कोई बड़ा लंबा चौड़ा मोटा ताज़ा, उसका तराजू में ज़्यादा वजन होगा? नबी के फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बड़े लंबे चौड़े मोटे ताज़े किसी हक़ को लाया जाएगा, लेकिन काफिर बेईमान होगा, अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर उसका वजन ही होगा। और उसके मुकाबले में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सब उनके सहाबी हैं, एक दिन आपके साथ बाहर हैं, सहाबा भी इनके सहरा में थे, तेज हवा चल रही थी, तो इब्न मसूद किसी दरख्त पर चढ़े मिसवाक उतारने के लिए, तो दरख्त पर खड़े हैं तो तेज हवा के साथ उनकी टांगे हिल रही हैं, दुबले पतले। तो सहाबा ये देखकर हंस रहे हैं, उनकी हिलती हुई टांगे देखकर हंसते हैं। तो आप माते हैं सहाबा को, क्या तुम अब्दुल्लाह बिन मसूद की दुबली पड़ी टांगों पर हंस रहे हो? अल्लाह की कसम, भी अल्लाह के यहाँ तराजू में ओहद पहाड़ से ज्यादा वजनी है। ये दुबली पतली टांगे जो हवा के साथ भी हिल रही है, ये ओहद पहाड़ में, अल्लाह के तराजू में ओहद पहाड़ से ज्यादा वजनी है। ओहद पहाड़ का वजन कितना है कि जो तकरीबन 4 किलोमीटर की या 3.5 किलोमीटर की चौड़ा है और 7 से 8 किलोमीटर लंबा है। इसी तरह उसकी ऊंचाई, तो उसका वजन कितने अरबों खरबों उसका टन होगा, समझे ना उसका वजन। तो इब्न मसूद की दुबली पतली टांगे आप माते हैं बहुत पहाड़ से ज्यादा वजनी है। तो इसलिए क़यामत के दिन जो वजन है, असल उसका म्यार किसी चीज के ज्यादा होने पर, किसी चीज के मोटा ताज़ा होने पर नहीं है, उस वजन का म्यार जो है तौहीद पर है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद का कलमा है, जो कलमा सारे गुनाहों के रिश्तों से भारी हो गया। इब्न मसूद दुबले पतले, लेकिन ईमान है, तौहीद है, तो तराजू में इनकी टांगों का वजन बहुत पहाड़ से ज्यादा है। उसके मुकाबले में लंबा चौड़ा मोटा ताज़ा काफिर बेईमान, अल्लाह के यहाँ उसका वजन मच्छर के पर के बराबर नहीं। तो मालूम क्या हुआ कि असल तौहीद है, अकीदा है, ईमान है कि जो क़यामत के दिन तराजू का उस दिन के वजन का जरिया बनेगा। तो मैं कि जिनके तराजू भारी हो गए, फहुआ फी ईशतिर रादिया, तो अब क्या है, तराजू भारी हो गया, ज्यादा नेकियां हो गई, कामयाब हो गया, पास हो गया, तो पास होने के नतीजे में क्या है, अल्लाह माता फहुआ फी ईशतिर रादिया,
बस ये वो शख्स है कि जो मनपसंद जिंदगी में होगा। मनपसंद के मानी जो चाहे, लहुम फीहा मा यशाऊन, अल्लाह माता है कि उनके लिए जन्नत में वो कुछ होगा जो तमन्ना करेंगे। और कायनात में ये जन्नती एक जगह है कि जहाँ पर इंसान की हर तमन्ना पूरी होती है। दुनिया में इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बादशाह हो, बड़े उसके दुनिया के पास वसाइल, दुनिया के वसाइल हो, उसके पास माल दौलत हो, लेकिन बहुत सी उसकी तमन्नाएं उसके दिल में रहती है और दिल में लिए ही दुनिया से चला जाता है। उसकी तमन्नाएं पूरी नहीं होती। कई तमन्नाएं बादशाहों की भी, बड़े बड़े साहिब लोगों की, मालदारों की भी, उनकी भी तमन्नाएं पूरी नहीं होती। लेकिन जन्नत वो जगह है, लहुम फीहा मा यशाऊन, अल्लाह माता है जो चाहेंगे, जो तमन्ना करेंगे। ये नहीं कि वहां पर कोई दौड़ धूप है, कोई मेहनत कोशिश है चीज को हासिल करने की, नहीं, सिर्फ तमन्ना, सिर्फ दिल में ख्वाहिश पैदा होने की जरूरत है कि फला चीज चाहिए, उनके लिए उनके सामने होगी। तो ये है वो ऐशतुर रादिया, मनपसंद जिंदगी, कि जो चाहे इंसान, जिस तरह की जिंदगी चाहे, जैसे लफ्ज़ उठाना चाहे, हर तरह के लफ्ज़ वहां पर मुहैया है। यह है जन्नत, यह है जन्नतों को पाने वाले कि जिनके तराजू, नेकियों के तराजू भारी हो गए। अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनु, उसके मुकाबले में जिसके तराजू हल्के हो गए, इन नेकियों के तराजू हल्के, बुराइयों के भारी हो गए, तो उसके बाद उसके लिए क्या है, फहुआ फउम्मुहु हाविया, अल्लाह माता है फउम्मुहु, उसका ठिकाना है हाविया, उसका ठिकाना हाविया है, गहरी खड खाई है। हाविया कहते हैं गहरे गड़े को, बहुत गहरा जो गड़ा होता है उसको हाविया का नाम देते हैं। तो अल्लाह माता है कि जो जिनके अमाल, जिनकी नेकियां कम, बुराइयां ज्यादा हो गई, उनका ठिकाना ये गहरा गड़ा है। गहरा गड़ा भी खाली गड़ा नहीं है। उसके बाद वमा अदरा का माहिया, तुम क्या जानो कि वो हाविया क्या है, वो गहरी खड खाई क्या है, नारुल, आग है, आग से भरी हुई वो खड खाई है। हामिया, दहती आग, दहती आग से भरी हुई वो बाती है, दहती आग से भरी हुई वो खाई है जो बहुत गहरी है। कितनी गहरी है? एक दिन साहबा किराम आप सब बैठे हुए और ऐसे आवाज सुनते हैं जैसे कि ऊपर से नीचे आवाज, नीचे कोई चीज गिरी हो, उसकी आवाज सुनते हैं। तो आप साहबा माते जानते हो कि किस चीज की आवाज है? तो साहब माते अल्लाह रसूल आलम के, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते क्या होगा। आप मानते हैं कि ये वो चट्टान है, चट्टान, कोई रूई का गाला नहीं, कोई परिंदे का पर नहीं, चट्टान है कि जो जहन्नम के किनारे से फेंकी गई थी और 70 साल के बाद आप जहन्नम की तह में पहुंची है। कि जिस जहन्नम की गहराई में पहुंचने की चट्टान को 70 साल लगते हुए, उसका अंदाजा कर सकते हैं कितनी बड़ी जहन्नम है और कितनी गहरी खाई है वो। क्योंकि जो असूल है दुनिया के अंदर हम जानते हैं, जो जमीन की कशिश का, ग्रेविटी का असूल क्या है, वो असूल ये है कि जितनी कुछ चीज भारी होती है उतनी ही जमीन की तरफ जल्दी पहुंचती है। आप पत्थर फेंको ऊपर से, देखो कितनी तेजी के साथ नीचे आता है। पत्थर की बजाय आप कोई रुई का गाला, कुप्पा, ऐसा किसी फेंको, ऐसा 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 हवा की तरह उड़ता उड़ता नीचे आएगा। तो भारी चट्टान और पत्थर जो है वो जहन्नम के किनारे से नीचे पहुंचने तक जिसमें 70 साल लगते हों, उससे अंदाजा होता है कि जहन्नम कितनी गहरी है। अल्लाह माता के जिनके तराजू, नेकियों के तराजू हल्के हो गए, कम हो गई नेकियां, बुराइयां ज्यादा हो गई, फउम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना फिर ये हाविया है, गहरी खड खाई है। वमा अदरा का माहिया, तुम क्या जानो कि वो हाविया क्या है, नारुन हाविया, वो आग है दहती हुई, यानी खाली खाई खड नहीं है बल्कि दहती आग से भरा हुआ। जो जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा सख्त और इससे ज्यादा शदीद है। तो ये है क़यामत के दिन दो तरह के आमाल और दो तरह का उनका इंजाम। नेकियां हैं, तराजू भारी हो गए नेकियों के, तो नेकियां ज्यादा हो गई तो मनपसंद ऐशो इशरत की जन्नत के लिए है। अगर नेकियां कम हो गई, फेल हो गया, तो उसके नतीजे में ये फिर जहन्नम है कि जो दहती आग का वो गहरा गड़ा है और खाई है कि जो जहन्नम उनका ठिकाना हो। तो ये है क़यामत का वो मंजर जो अल्लाह ने सूरत में पेश किया है और क़यामत के हालात के मुख्तलिफ अंदाज से जिक्र किए हैं कि ताकि इंसान को अंदाज़ा हो कि वो इस दुनिया के आगे कहाँ जा रहा है।
اور आगे के मराहिल कितने ख़तरनाक हैं कि जिसके लिए इंसान को तैयारी और अमल करने की ज़रूरत है। बारकल्लाहु फ़ीकुम, जज़ाकल्लाहु खैर। कुछ सवाल ही साथियों का ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गए।